Okay. Okay, guys. So recording is started. Okay, so guys, last time we discussed about the data types, right? We said that we have majorly two types of data. One is the quantitative and another one is the qualitative. Quantitative is also called as numerical data, and the other type was categorical or qualitative, which basically tells about the categorization and the qualities of the data set. Okay, then we further subdivided that into the categorical data into two parts. One was the nominal and another one was the ordinal data. Nominal was the basically the naming categorization, like Pradeep, Nivedita, Achal. This is for the naming conventions, right? Like male, female, like laptop, another stuff that way. So gadgets and that way, whatever is used for the naming convention, that falls under the nominal data. And in ordinal data, we sort of basically for the Likert scale, right? Or basically used for the feedback purposes and that way. On the other hand, uh, for numerical data set, what we said that there are again two types. One is the discrete one and another one is the continuous type. So discrete में हम लोग ने क्या बोला कि where there is a whole number, like the number of rooms, number of books, number of kids, number of uh, mobile phones and that way. And on the other hand, continuous data set is which takes place the values of in decimals, right? Like the weight of somebody, like height, like speed and that way. And again, we further subdivided the continuous data type into another one. One was the interval and another one was the ratio. So the major and the big difference to identify the ratio scale, ratio type and the interval type is in interval data type, the zero is imaginary, right? The example we took of temperature, right? And the time or IQ, right? Here image zero is imaginary. On the other hand, in ratio scale, zero is actual. So for an example, if I say I don't have any money, so if I have zero money, then I'm saying I have absence of money. But on the other hand, in interval scale, if I say the temperature is zero, it does not indicate the absence of temperature, right? So the zero taken in interval scale is just for imaginary purpose or just for the calculation sort of thing. Like the 0000 time is indicating, it does not indicate the absence of time, right? So this is just for the measurement. I hope till here we are good. Give me thumbs up if everybody is in sync with me. Okay, thank you. Okay guys, तो अब जरा बात करते हैं आगे। ये तो समझ लिया हमने डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनका यूज केसेस क्या होगा। धीरे धीरे हम आगे कवर अप करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझ लिया है हमने और कुछ एग्जांपल्स के साथ में भी समझ लिया है। बट एज वी मूव ऑन, वी विल गेट टू नो कि अच्छा अगर डिस्क्रीट टाइप का डेटा होगा तो मैं ये वाली एनालिसिस करूंगा, या कंटिन्यूस होगा तो मुझे ये वाला एनालिसिस करना है, एंड दैट वे सो दैट वी विल फिगर आउट लेटर। बट फॉर नाउ लेट्स, अभी तो जो पिछला लेक्चर था हमने इसमें समझा कि डेटा क्या होता है, राइट? या डेटा के टाइप्स को हमने समझा। So let me open one Excel file and quickly we will cover, though you have already given me various examples of the numerical and categorical data types, but let's have a quick recap on the things and let's understand it in a very fast manner. So everybody please unmute yourself and I'm going to ask you people, I'm going to shoot few questions. Hope my screen is visible to everybody. Please unmute yourself. I'm going to ask few questions to you people. Okay. Okay. So Anjali, column A is product key, right? Is like product key is replace key with ID. So in column A it is product ID. What sort of data it is? Numerical, categorical, or what? Please speak a little bit louder. You're asking for quantitative or qualitative?
जो ये डेटा है कॉलम ए में, ये किस तरीके का डेटा है? Not understand. हाँ चल, Qualitative. निवेदिता, Qualitative. why? Because we can't add the first cell and the second cell. Just a series of numbers. Under qualitative, what sort Sorry, of it's ID. Yes, a yeah. unique ID. It's like that. Exactly. And under qualitative data, it is ordinal or nominal? Ordinal, searching the participant who shows. It is Nominal, I guess. But used for naming variables. It Yeah. is nominal, I guess. it's Absolutely, this is nominal. Anjali, did you get it now? nominal. Yes, Pradeep, got it. I said it is nominal, but I don't Yeah, know this is why nominal. it is nominal. Because it says it is used for naming variables. So that Yeah. means this ID is used for giving a name Yes. to Yes, the absolutely. particular order. Hence, it is called as the okay. Nominal. Okay. Yeah. Anjali, did you get it now? Okay, Anjali, now tell me, this customer key is numeric. What sort of data? Customer key. Unique values. Qualitative ही है. Qualitative में कौन सा है? Nominal. क्यों? Customer key में क्या है, उसको different customer का different key होगा. Correct. Right. जहाँ इसमें Okay. Achal, column L, order quantity. Yes, What sir. sort of? So कौन सा है? it's quantitative. Yogesh? Yeah, it's quantitative, it's ratio. Nivedita? Quantitative. It is, I think, discrete. It's Yeah, discrete, Yogesh. sorry, yeah, it is discrete. Yes, it is discrete. This is discrete. Okay. Nivedita, column M. Unit price. Price we can measure, so it is quantitative. And money, temperature, height. It is price. This is It is discrete or price number. continuous? That's what I was just thinking. I think it is quantity of items. It is price. I think discrete. Anjali, this is Because discrete or continuous? Weight of anything. continuous ratio. Yep, continuous ratio. Anchal, can you explain me why this is continuous and ratio scale? Yes, sir. Continuous is because it's not particular numerical. It's continue Yes. में है ये decimal में आ गया तो it means it's in continuous. Perfect. And yes, sir. And ratio is something ratio इसलिए है क्योंकि इसमें हम इसका हम जो निकाल जीरो होगा सकते वो हैं एक्चुअल जीरो different. होगा. अगर किसी का प्राइस जीरो है, it means the zero is actual zero, right? This is not, हाँ, and the imaginary other नहीं है. mathematical operations we can perform, right? Yes, sir. Yes. Everybody agree? Nivedita, Yeah. you understand this now? Yeah. So if there are decimals, it is to be considered as continuous, is it? Right. नहीं देखो, डेसिमल तो इसमें भी आ सकता है, ये भी डेसिमल है. हाँ. राइट, बट ये ऐसा नहीं होगा. इफ लेट्स से आई एम अभी देखो जैसे इसने मेंशन किया हुआ, इफ आई लुक एट द डेटा एवरीथिंग इज इन वन, राइट. ये ऐसा नहीं है कि आई परचेज 1.25, द ऑर्डर क्वांटिटी इज इन वन, द होल यूनिट, राइट. That is why this is in the discrete format, and the price is 1 rupee 99 paisa, 10 rupee 50 paisa, and that way. Okay. Yeah. Okay. Like the weight 50 kilo, 600 grams, and that way, right? So height, weight, temperature, and all I got it. Either it will fluctuate. I mean, it is Not continuous. temperature. Temperature will fall under the though it's a continuous data type, but it will fall in interval. Interval scale. Okay. Okay. Quickly tell me, Nivedita, this Freet, whether the what sort of data it is?
okay. Freight is what? The transport thing. Yeah. Okay, freight is it This is is the amount, okay? quantitative. Don't Huh. consider it as a freight. This is freight amount. It's Okay, in okay. dollar, That na? is Yeah. quantitative, Yes. and it has money in that. So it is what's that? Continuous. Perfect. Okay. Got it. Okay. No worries. Okay. Anjali, city. Column B. City. बहुत इजी है यार. Anjali, you are on mute. Achal. Qualitative nominal. Yes, yes. Correct. Okay. Okay. Postal code. Yogesh. Yeah, it is qualitative, nominal. Achal, why this is qualitative? Or do you agree? Do you agree with this? The postal code is qualitative nominal. Yes, sir. Yes, sir. Because we can perform like it's qualitative. It's unique ना. हर किसी का code different, unique होगा. So that's why it's qualitative. Nivedita, do you agree? Can it be ordinal? Ordinal. Qualitative. No, ordinal. it's nominal. Qualitative nominal. We cannot say 2015 is less than 2450. Correct. Both are different. Both are different from each other. Okay, okay. Why I thought that was it's a zip code, and then based on the respective zip code, we get the addresses, right? So But zip code cannot be greater than something, or I cannot say Bangalore's zip code is better than Delhi's, right? We cannot. Okay. Okay. So guys, I think we are good with the identification of data types. That is good. तो चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे. So let's go back to our school days. So we are going to cover a very important topic, guys, today. Very important, but very basic, but very important. So जनरली क्लासेस में क्या होता था कि जब भी यूनिट टेस्ट होते थे तो यूनिट टेस्ट में क्या होता था कि लेट्स से देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओके, और आउट ऑफ 100 दे आर देयर मार्क्स. somebody got 69, somebody got 64, 68, so on and so on and so on, okay. तो अगर मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास ये 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो पहली चीज क्या आती है आपके माइंड में? व्हाट डू यू कैलकुलेट फर्स्ट? Percentage or the sum? चलो परसेंटेज भी आता है, Rank. पेज मार्क्स आता है ना. चलो परसेंटेज मार्क्स, चलो ठीक है, दैट इज वन. और Rank. रैंक, चलो ये यूनिट टेस्ट है अभी. दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट. लेट वी कैन टॉक अबाउट द फाइनल रिजल्ट एज वेल, बट या अगर एक टेस्ट है, मतलब रैंक इन द सेंस मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन लाया, ये भी तो होता है ना कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, फेल कौन हुआ है. ठीक है, एक परसेंटेज मार्क्स हो सकता है. चलो और क्या हो सकता है? चलो रैंक हो सकता है, और मैक्सिमम मिनिमम हो गया बेसिकली. एवरेज हो गया. हाँ, एवरेज. चलो मैक्सिमम का पता चल गया, मिनिमम का पता चल गया, रैंक भी चलो हमने बोला जो सबसे टॉप है वो फर्स्ट रैंक, जो सबसे लास्ट आया वो उस तरीके से. परसेंटेज मार्क्स भी हमने चलो कैलकुलेट कर लिए, आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं तो हमने वो निकाल लिया. एवरेज से क्या पता चलता है बाय द वे? व्हाई डू यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज? व्हाई डू वी वांट टू नो एवरेज? जिससे How कि much हमें each individual is scoring? मतलब एटलीस्ट सब भी Yeah. मतलब एटलीस्ट मोटा हम लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इतने तो लोग बंदे इतने मार्क्स तो हर पर पर्सन इतने मार्क्स वो गेन कर ही रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल का. ओके, sort of correct, yes. Anjali, what do you think? Why do we calculate average? Same as Anshul said. Nivita, you have same thought or different one? Same, Pradeep. Right. At least, हाँ. Yogesh, मतलब do you want minimum to add something? threshold जो है we will get to know. yes, Pradeep. yes correct ma'am. क्या? Yeah, by one number we can, by average we can get a single number Individual. so that कि data कहाँ जा रहा है, converge कहाँ हो रहा है.
उस एक सिंगल नंबर से हमें उसके रिप्रेजेंटेशन मिल Right. जाएगी पूरे डेटा की। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एवरेज हमें क्या बताता है, एक डेटा का एक सेंट्रल पार्ट बताता है, राइट, कि सेंटर कहाँ पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करता हूँ, व्हाट इज द एवरेज, सॉरी क्या हो गया, एवरेज, और मैंने निकाला ये एवरेज निकाल दिया मैंने, एंड एवरेज कम्स अराउंड 60 मार्क्स, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि यार ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स आए हैं, राइट। इसका मतलब मैं ये सारे जो 15 स्टूडेंट्स हैं इनको मैं एक नंबर से डिनोट कर रहा हूँ कि ये 15 जो बच्चे हैं ये 60 के रेंज में फॉल कर रहे हैं। कोई 60 के आसपास ऊपर नीचे है, कोई थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, बट ओवरऑल पूरी क्लास का परफॉर्मेंस इज अराउंड 60%, right? So basically what we are doing, we are trying to know the central part of the data. Agree? Or basically we are trying to identify one number summary, right? कि एक नंबर से मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ भैया ये डेटा कैसा दिख रहा है या क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर, अच्छा मैंने बंद कर दिया क्या, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मान के चलते हैं जो हम अभी पिछला डेटा देख रहे थे, अगर मैं मान के चलो एक मेरी दुकान है, उस दुकान का सेल है 15 दिन का, राइट। किसी दिन 69,000 का सेल हुआ है, 64, किसी दिन 70,000 समथिंग समथिंग समथिंग, एंड माय एवरेज कम्स अराउंड 60,000। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऑन, कोई बोलता है यार दुकान कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, मैं बोलता हूँ यार ऑन एन एवरेज 60,000 तक की सेल हो जाती है। विच मीन्स कि आई एम सेइंग कि ये 15 दिन में लगभग मैं मतलब हर डे लगभग 60,000 का धंधा कर रहा हूँ मैं, 60,000 का मेरा सेल हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, राइट। राइट। सो दिस इज वन पार्ट, बट अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ, और लेट्स ट्विस्ट इट दिस वे, लिटिल बिट ट्विस्टिंग इज देयर, कि अगर यही मार्क्स जो हम पहले ऐसा ले रहे थे कि जब ये आ रहा था तो एक 60 नंबर आए हमारे पास और हम 60 बोल रहे थे कि हाँ यार कुछ बच्चे हैं जो 60s के अराउंड भी फॉल कर रहे हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, कुछ बच्चों के 0 मार्क्स आए, किसी का 1, किसी का 5, एंड सम आर लाइंग अराउंड 50, 51, 52, देन माय एवरेज कम्स अराउंड 41, राइट। बट क्या इनमें से किसी बच्चे का मार्क्स 40 है? नहीं है, राइट। सो इजंट इट, अभी देखो चलो यहाँ पे है, यहाँ पे चलो 60 हमने एवरेज लिया। एक मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ दिस वे। चलो 60 मार्क्स आए मेरे, तो चलो मुझे लग रहा है 51, 60 चलो कोई ज्यादा दूर नहीं है, 70, 60 ओके मैचेस। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं दूसरे सिनेरियो में, मैंने एवरेज निकाला, मेरा इस बंदे का 0 है, और ये मैं बोलता हूँ कि भाई होल क्लास इज अराउंड 41 मार्क्स। सो डज दिस जस्टिफाई? इन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं नीचे चला गया, बट चलो इन लोगों का तो चलो समझ में आता है कि चलो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या इन 3 लोगों के लिए 41 मार्क्स जस्टिफाई करता है एवरेज नंबर? नहीं। No. नहीं करता, राइट। योगेश एनी थॉट्स? यस प्रदीप, आई एग्री, बिल्कुल। राइट। तो यहाँ पे जो एवरेज का पंगा है, वो एवरेज जो मैं सेंट्रल पार्ट निकालना चाह रहा हूँ डेटा का, मेरा आ तो गया है सेंट्रल पार्ट, बट सेंट्रल पार्ट इज समवेयर फॉलिंग 41, एंड वेयर माय नन ऑफ माय स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अराउंड दैट सेंटर पॉइंट, राइट। अब इस केस में क्या करना चाहिए मेरे को? तो इस केस में एक दूसरा पार्ट समझ बीच में आता है गाइस। ओके, सो दिस ब्रिंग्स बैक मी टू द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। जब भी कोई डेटा हम निकालते हैं तो जनरली हमें बोल देते हैं कि यार एक काम करना, एवरेज निकाल दे। अगर एवरेज यहाँ पे फिट बैठता है जब मेरा एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ठीक है। क्या होता है सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि जो मेरा एवरेज आ रहा है और जो मेरा डेटा का स्प्रेड है। देखो गाइस थोड़े थोड़े से ना जार्गन आ रहे हैं अभी डेटा वाले बीच बीच में, कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो बोल देना। जैसे मैंने बोला डेटा स्प्रेड, तो डेटा आपको समझ में आ गया, डेटा तो ये है, बट डेटा का स्प्रेड क्या है? स्प्रेड मतलब ये मार्क्स कैसे फैले हुए हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मिनिमम 51 है और मैक्सिमम 70 है, तो इस रेंज में 51 से 70 की रेंज में ये 51 से Okay, 70 की wait, sorry. रेंज में ये डेटा स्प्रेड हो रखा है, राइट। तो डेटा स्प्रेड इसको बोलते हैं कि हाँ मेरा डेटा किस तरीके से स्प्रेड हो रखा है। तो अगर मेरा डेटा
जो एवरेज आ रहा है उसके आसपास ही है, देन इट मेक सेंस। बट हमने दूसरे वाले केस में जैसे देखा कि यार जो मेरा एवरेज आ रहा है और जो मेरा डेटा का स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल सा हो रहा है। 41 और 015 में कोई बहुत बड़ा गैप आ गया है, एंड दैट वे, राइट? तो it becomes very very important when we are analyzing a data. It becomes really very very important to find the correct center of the data. It becomes very very important to find the correct center part of the data. So one center part is average and other center parts are mean is nothing but average. Okay guys, mean or average is same thing. तो सेंट्रल टेंडेंसी हमने ये स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, हम अपने किसी ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, मैं तो अभी तक पढ़ रहा हूँ, बट ओके। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि किसी भी डेटा का मैं सेंट्रल पार्ट जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैं एक नंबर से मैं उस पूरे डेटा का एक बिहेवियर जानना चाह रहा हूँ मैं, राइट? सो एज वी अंडरस्टूड इन आवर फर्स्ट एग्जांपल कि भैया अगर मेरा सेल कभी 69,000 हो रहा है, कभी 72, कभी 58, दैट वे मेरा एवरेज आया 60,000, देन आई कैन से कि मैं ऑन एन एवरेज 60,000 के सेल कर रहा हूँ। ओके, तो एवरेज और मीन इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ द डेटा। अनदर पार्ट इज मीडियन एंड वी विल ऑल्सो टच बेस ऑन मोड। तो मीन सबको समझ में आ गया है, एवरेज समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है क्या मुझे? मैंने एक मीन कैसे लेते हैं, क्या कहाँ पे लेते हैं हमने वो देखा, और क्या उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है हमने वो भी समझा। सो मैं मीडियन की तरफ बढ़ूं या मीन में अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? Pradeep, mean so the first sheet that you showed where like all the data spread, what you said, it was almost the same, wherein the average was around 60%, right? So that is called mean average. A mean or मीन और average. एवरेज दे आर It's सेम। the same. Huh. So the second sheet that you showed, wherein it was around 40%, wo jo first three, it was 0, 1 and all, right? हाँ हाँ, So that does आई एम लिसनिंग। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मतलब I'm asking. बस क्या? उतना ही है. हाँ No, I was just हाँ, asking. The सही second thing समझे will हो it अभी come तक। under mean or median? हाँ, ठीक है, then it's fine. My son had come in between, so हाँ, I just thought like I miss anything. no, yes yes, you are absolutely on track, राइट? तो पहला हमने बोला कि मीन का हमने एक परफेक्ट एग्जांपल भी समझा, जब मीन परफेक्टली काम कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से। ये वाले एग्जांपल में मीन 100% अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट हमने दूसरा केस देखा जहां पे मीन हमें थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगा कि यार यहाँ पे मीन लेना कितना सही है हमारे लिए, राइट? तो मीन के साथ में या एवरेज के साथ में ये प्रॉब्लम है कई बार। क्या प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड मीडियन। क्या होता है मीडियन, आंचल? स्कूल डेज। इट्स मिड वैल्यू। अब वैल्यू जो कि डेटा को इक्वली डिवाइड करता है। यस, सॉर्ट ऑफ, यस। अंजलि? Yes, sir. Same. यस। योगेश? Yes, mid value when data is arranged in ascending or descending order. करेक्ट। जब हम डेटा को एक ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, तो चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम उसका मिड वैल्यू चेक करते हैं कि हाँ भाई, उससे मुझे पता चल जाता है कि डेटा का सेंटर पार्ट कहाँ पे है ना? एंड मतलब बेसिक मेथड जो हो गया है हमारा, है ना? तो अगर अब मैं इसी वाले पॉइंट में जहाँ पे मेरा एवरेज 41 आ रहा है, यहाँ पे मैं मीडियन कैलकुलेट करके देखता हूँ, तो मैं निकालता हूँ मीडियन, और ये मेरा है डेटा सेट, और समवेयर इट कम्स अराउंड 51। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है मेरे को यहाँ पे कि अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 51 आया और एवरेज है मेरा 41। तो अब क्या समझ में आता है? व्हाट डज इट टेल नाउ, योगेश?
It is not looking for the extreme values. It is just taking the center part. देखो अगर आप देखोगे लेट्स से 15 डेटा पॉइंट्स हैं देयर एंड 15 में से 12 डेटा पॉइंट्स, राइट, which means approximately 80% of the data ये क्या कर रहा है, अराउंड 51 के अराउंड लाई कर रहा है, राइट? अग्री और नॉट? देयर आर 15 स्टूडेंट्स और 15 में से मेरे 12 स्टूडेंट अराउंड 51 के अराउंड नियर अराउंड लाई कर रहे हैं, राइट? तो isn't it a close measure rather than average? Average is falling around 41 where none of my student is falling, but on the other hand median if it comes around 51 where I can see that 80% of my students are near around that data or around 51. Which one is closer? अगर आपको इन दोनों में से चूज करना हो एवरेज में से और मीडियन में से, अगर मुझे सेंटर पार्ट चाहिए डेटा का, तो आप कौन सा चूज करोगे यहाँ पे? Median. निवेदिता? Yeah, median itself, but while talking about median, do we have to also say that it's only 80% or 70% of the population has 51 marks? मतलब average में we just say it is 41% और मतलब 41 का score है. अब 41% नहीं है निवेदिता, it is 41 only. It is the number. Okay, क्योंकि हम मार्क्स की बात कर रहे हैं. हाँ. Okay. So average में we say, you know, like we have students who are scoring around 41 marks. Median में we say that 80% of the students are scoring 51 because 20% यहाँ पे हमारा 80% का एग्जांपल आ रहा है, does not necessarily mean कि 80% होना ही चाहिए. मतलब one of the examples में, हाँ, इस वाले एग्जांपल में 80% आ रहा है, राइट? करेक्ट, हाँ. ओके. ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हमें मीडियन दिख रहा है, मीडियन इज रिप्रेजेंटिंग माय सेंटर पार्ट ऑफ द डेटा एंड दिस इज, अगर मैं डेटा को देखता भी हूँ तो आई कैन सी कि हाँ यार, अगर मैं डेटा को देख रहा हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग अराउंड 51 ओनली, राइट? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, यही एक, ये भी उसी का एग्जांपल है बाय द वे. यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनका भी 1 आउट ऑफ 100 का एक रेशियो बनाया हुआ है मैंने कि किसी के मार्क्स 1 है, किसी का 5 है, 13 so and so on, and some students are also have also scored 100 points, right? देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, 51 हमारा सेंटर आ रहा था. अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में देखो आप, अगर ओके लेट मी पुट इट अदर वे लिटिल बिट. अगर देखो अभी इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए. अब अगर सिर्फ एवरेज देखो, ये मेरे 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. Some students scored 5, 10, 2, 1, something, 45 as well, and one student also scored 100. अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज इज कमिंग अराउंड 15%. बट ये जो डेटा सेट है इसमें क्या लग रहा है क्या कि ये 15 इज अ गुड नंबर टू इंडिकेट? अगर इसके 5 मार्क्स हैं, चलो तो 12 आ गया. नो, राइट? बट अगर यहीं पे आप मीडियन देखो तो मीडियन इज कमिंग अराउंड 5, विच मीन्स देखो जब हम मीडियन लेते हैं तो मुझे ये ऑर्डर में सेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर लेता है. बट इनकेस अगर आप करना भी चाहते हो तो स्टिल इट विल. अच्छा सॉरी, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, एक सेकेंड. ओके. क्या हो रहा है आपके पास, ये तो मेरे पास हमने बोला कि भाई मैं इस डेटा को विजुअली देख पा रहा हूँ, राइट? मेरे पास 15 स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने देख लिया. मेरे पास चलो 20-25 लोग होंगे, मैंने देख लिया यार, अच्छा चलो यार कि एवरेज इतना आ रहा है या मेरा डेटा कोई बहुत कम नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर भी है मेरे पास में, राइट? सो अगर ये मान के चलो कि मेरा डेटा लेट्स से 1000 रो हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल जो पहले वाला डेटा था मेरा, उसी डेटा की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें मैं एवरेज निकालने जाता हूँ या मतलब मीन निकालूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एवरेज निकालना चाहिए या मुझे मीडियन निकालना चाहिए?
यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे ये वाला है, अब यहाँ पे यूनिट प्राइस ये लिखा हुआ है, सॉरी सेल प्राइस कहाँ गया, सेल अमाउंट ये है। अब ये कितने रो हैं इसके अंदर, देयर आर 60,000 रोज। तो अब तो भाई मैं ये नहीं देखने जा सकता ना कि यार मतलब एक्चुअली जो मेरा नंबर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। हाउ डू वी नो दैट? देखो, जब हमने पहले वाला एग्जांपल लिया तो हमने बोला यार कि हाँ यार मेरा 60 एवरेज आ रहा है, तो ये डेटा मैं देख पा रहा हूँ विजुअली, सो आई कैन से ओके 60 एंड जो डेटा का स्प्रेड है दे आर क्लोजर, सो एवरेज इज ओके। इन द सेकंड एग्जांपल, जब क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा देख पा रहा हूँ कि नहीं यार माय 50% ऑफ द डेटा इज अराउंड दिस वे, सो हियर मीडियन इज ओके। बट ऑन अ रियल सिनेरियो, जब मेरे पास अराउंड 50,000 60,000 रो आइटम्स हैं जैसे इस वाले एग्जांपल में, देन हाउ डू आई नो कि मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए? अगर आप यहीं पे देखो, यहाँ पे $4 का प्राइस भी है और 3300 प्राइस का भी प्राइस है, राइट? तो अब यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, मीन लेना चाहिए या मीडियन लेना चाहिए? अगर मैं बोलूं एवरेज सेल क्या हो रहा है, देन मुझे यहाँ पे देखो नंबर मेरे पास सबसे मिनिमम भी है। अगर मैं और देखूं तो मेरे पास $2 है मिनिमम, $2.29, और अगर मैं मैक्सिमम जाऊं तो मेरे पास है $3,500। देयर इज अ एक्सट्रीम स्प्रेड। गाइस, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. निवेदिता, यू आर ऑन ट्रैक? Yes, yes. तो अब जब ये सिनेरियोज हो जाते हैं हमारे पास कि भाई डेटा का स्प्रेड इतना ज्यादा है या मैं 60,000 रो को मैं विजुअली एक बार में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, तो मुझे करना क्या चाहिए? और मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ यार मुझे यहाँ पे एवरेज मुझे ज्यादा सूट करेगा या मीडियन ज्यादा सूट करेगा? सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू कैलकुलेट बोथ ऑफ देम। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो यहीं पे मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ एवरेज इज नथिंग बट मीन। ओके, तो मैंने इसका पूरा ले लिया मैंने इसको, और मेरा एवरेज सेल आ रहा है 486 रुपीज, $486। दिस इज माई एवरेज। और अगर मैं यहीं पे मीडियन कैलकुलेट करता हूँ तो मीडियन कम्स अराउंड मीडियन आता है मेरा $29 का। तो मीडियन अगर मैं देखूं तो इससे क्या पता चलता है हमें, अभी क्या पता चल रहा है? अगर एवरेज इतना आ रहा है और मीडियन इतना आ रहा है, तो इस डेटा से मुझे क्या समझ में आता है योगेश? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं गाइस, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। योगेश, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? I'm thinking actually. एवरेज आ रहा है मेरा ये नंबर, हम्म। मीडियन आ रहा है मेरा ये नंबर, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एवरेज। गाइस, एक मिनट के लिए अगर दोबारा से प्रीवियस वाले एग्जांपल में जाता हूं मैं, जहां पे मेरा एवरेज 60 आ रहा है, अगर इसी एग्जांपल में मैं मीडियन कैलकुलेट करके देखता हूं तो मीडियन कितना आता है जरा देखते हैं। मीडियन और एवरेज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। अग्री गाइस? एवरेज इज 60, मीडियन इज 60, विच मीन्स कि अगर मैं कुछ भी ले लूं यहाँ पे दोनों में से, तो मेरा एक ही पर्पज आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ठीक है यार कुछ भी ले लूंगा चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि यार हाँ ठीक है चलेगा। बट यहाँ पे जब हमने लिया थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आया, यहाँ पे और ज्यादा डिफरेंस हमने देखा कि यार यहाँ पे एवरेज में मीन कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, और जो हमने अभी एग्जांपल लिया यहाँ पे हमें एक और बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट? मैं डेटा का स्प्रेड बहुत ज्यादा है एक तो, मतलब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज में मिनिमम में बहुत कम है, मैक्सिमम में बहुत ज्यादा है। उनमें एक तो डिफरेंस बहुत यस, मतलब सो रेंज देयर इज बहुत ज्यादा है वन, हमारी। yes, there is one key concept comes here guys, and that is called the extreme points. That is called the extreme points. एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग डेटा की लैंग्वेज में बोलते हैं आउटलायर्स। जैसे जैसे अभी इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे, सब अगर मैं मान के चलता हूँ जो
क्वेश्चन पेपर था वो मान के चलो कि टफ था, बहुत टफ था, किसी बच्चे के 1 मार्क्स आया, 5 मार्क्स आए, 0 मार्क्स भी आए, 9, 2, 1, बट देयर इज वन गाय हु परफॉर्म्ड 100 आउट ऑफ 100, कैन वी से कि दिस गाय इज आउटलायर? और आउटलायर का मतलब ये होता है बेसिकली, आउटलायर को ऐसे समझो जो डेटा से बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, जो जो जनरल डेटा है उससे एबनॉर्मल है। सो आउट ऑफ 15 students, 14 students scored like 1 2 3 4 5 that way, right? उनका अगर मैं 14 students का एवरेज देखूं तो that falls around 3.4, but ये जो बंदा है 15वां बंदा, he or she scored 100 out of 100, which means this 15th guy is way beyond than these other 14 people, right? So जो ऐसे पॉइंट होते हैं, जो डेटा से, जो हमारा नॉर्मल जो डेटा है, जो डेटा का स्प्रेड उसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स। अभी आउटलायर्स कैसे पता चलेंगे हमें, उसके लिए आएंगे बाद में, बट जस्ट टू समराइज हियर, जब हमारे डेटा में, लेट्स लुक बैक हियर, इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो हमारा कोई आउटलायर नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज नियर अराउंड दैट। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हो सकता है इसमें आउटलायर हो, मुझे ना दिख रहा हो, क्योंकि विजुअली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द आउटलायर्स। कई जगह पे दिख सकता है, कई जगह पे नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस था, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज आउटलायर। बट अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या मेरा 0 आउटलायर होगा या क्या मेरा 52 आउटलायर होगा? Visually I cannot say this. I mean, there are some formulations through which I have to go, and then I can say कि हाँ भाई outlier है या नहीं है। But the मोटा summary is, जब मेरे डेटा में outliers नहीं है, for an example this case, इस केस में मेरा कोई extreme value नहीं है, तो in that case we refer average as a central tendency of the data. But when we have outliers, then we prefer to have median as a central tendency of the data. Why I'm saying central tendency? Because central tendency के basis पे हम लोग डेटा का एक बिहेवियर चेक करते हैं, राइट? जैसे कि हमने ये इस 60,000 वाले, अगर इस सेल्स है तो सेल्स का हमने एग्जांपल लिया था, बट अगर मान के चलो कि यही डेटा है, यही अगेन सेल्स का डेटा है, किसी दिन $100 की सेल हुई, किसी दिन 500, 300, एंड सडनली वन डे वी मेड अ सेल ऑफ लेट्स से $1,000। बट तब मैं इतनी बोलूंगा ना भाई, अगर मैं लेट्स से आई पुट 1000 हियर, तो मेरा जो एवरेज है दैट शिफ्ट्स टू 70। अगर मैं ये डेटा देखूं तो मेरा कहीं भी 70 आ ही नहीं रहा है। आई एम नोवेयर क्लोज टू 70 ऑन रिमेनिंग 14 डेज, राइट? बट हो सकता है इस दिन कुछ ऐसा हो गया हो, कोई कुछ तो ऐसा मैजिक हो गया हो कि मेरी सेल ज्यादा हो गई हो। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि ये डेटा मैंने गलत एंटर कर दिया है, गलत पंच हो गया है मुझसे ये डेटा। दैट कैन बी सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 3 कैन बी कि ये 100 था और मुझसे ये हो गया, सॉरी दैट अगेन कम्स अंडर द रॉन्ग डेटा एंट्री। या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर मेरा डेट था, उसने मुझे दे दिया, उस दिन मेरा जो टोटल जो गल्ले में पैसा आया वो इतना था, एंड आई कंसीडर्ड दैट एज अ सेल। सो देयर कैन बी मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस, दैट वी विल अंडरस्टैंड जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे पावर बीआई के अंदर, कि इस तरह की वैल्यूज को कैसे कंसिडर करना होता है। वी विल कवर इट अप later on, but for now let's stick to outliers again. So again coming back to this same point, जब हमारे डेटा में outliers या extreme values नहीं होते हैं, then we consider average as a central part of our data. But on the other hand, when we see that there are outliers or there are extreme values or the abnormal values, ये सब एक ही टर्म्स हैं, ठीक है? But better to call it outlier, like here कि ये आउटलायर है, तो देन वी प्रीफर मीडियन एज अवर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। ये जो मैंने कहानी बोली अभी 5 मिनट में, ये समझ में आया या ऊपर से तैर गया है?
अंजलि? समझ आया सर? हाँ चल। यस सर, क्लियर क्लियर। कब करते हैं हम लोग? when do we consider median? व्हेन देयर एक्सट्रीम वेरिएशन, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स जब हमें मिल जाते हैं तब हम मीडियन प्रेफर करते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, राइट? यहाँ पे तो मेरे पास ओनली 15 स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई कैन क्लियरली सी हियर कि यार ये 100, हाँ ये आउटलायर है, राइट? ये देखो सबने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया है एंड दिस इज द ओनली पर्सन हु इज एक्सट्रीम, राइट? और यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है। बट जो हमारा ये वाला केस है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास 60,000 रो आइटम्स हैं एंड आई डोंट नो कि भाई अभी देखो मीडियन मेरा 29 आ गया है। अगर मीडियन में और मीन में बहुत बड़ा गैप है, एज वी कैन सी हियर, इट डायरेक्टली मीन्स कि देयर आर आउटलायर्स इन द डेटा सेट। सो अभी अगर मैं इतना बड़ा रो आइटम नहीं देख सकता हूँ, आई कैन नॉट गो एंड विजुअली सी दो 60,000 रो आइटम्स, सो आई कैलकुलेट एवरेज which means mean, and also median, and if there is a huge gap between both of them, then I can clearly say कि इसके अंदर outliers हैं। as let's go back to our simple examples, जैसे कि यहाँ पे हमारे दोनों डेटा पॉइंट एवरेज और मीडियन पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस डेटा के अंदर आउटलायर नहीं है। हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, बट एक हाई लेवल पे मुझे अगर मैथमेटिकली नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और मीन और मीडियन देख के समझना चाह रहा हूं क्या मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, तो मैं वो सिर्फ मीन और मीडियन के बीच का गैप देख के भी समझ सकता हूं मैं। तो इन दिस केस दे आर लाइंग नियर बाय, सो आई कैन confidently say no, there are no outliers. In this case I can clearly see that there's a huge gap between median and the average, which means yes, there are outliers in the game, and yes, I can clearly see this is an outlier. But if we take in this case average is coming around 41, median is coming around 51, and let's also consider minimum and maximum here. Minimum क्या आता है मेरा? Minimum is this and maximum is this. तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम मेरे ये पॉइंट हैं और मेरा एवरेज इज 41, मीडियन इज 51। तो यहाँ पे मुझे लग तो रहा है कि ये जो 0 वाला पॉइंट है 015, ये मेरे आउटलायर हो सकते हैं। सो गाइज आउटलायर का मतलब ऐसा नहीं है कि आउटलायर का मतलब ये नहीं है कि वो हायर एंड की तरफ होगा। आउटलायर्स कैन बी इन लोअर एंड एज वेल, दिस इज द हायर साइड। ओके, इस वाले एग्जांपल में 100 is on higher side because we are having other points as 1 2 3 4 5 that way, और इस वाले एग्जांपल में 51 51 52 54 आर द नॉर्मल स्प्रेड, और जो ये 015 है ये लोअर एंड की तरफ है। तो आउटलायर हमारा किसी भी तरफ हो सकता है, लोअर साइड में भी हो सकता है और अपर साइड में भी हो सकता है, राइट? बट यहाँ पे मुझे ये देखना रहेगा, हालांकि मुझे यहाँ पे आई मीन एवरेज और मीडियन में गैप तो है। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेस्ड ऑन दी मिनिमम एंड मैक्सिमम का वैल्यू, तो मिनिमम मेरा 0 है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो वैल्यूज हैं ये व्हाट वी से मेरे आउटलायर में जाएंगे, राइट? बट अब यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई इसमें मीडियन मेरा 29 आ रहा है और एवरेज मेरा 486 आ रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज गैप इनटू दिस। सो हाउ डू वी मैथमेटिकली कैलकुलेट आउटलायर्स? दिस इज द अनदर क्वेश्चन। सो आर वी गुड सो फार? निवेदिता? Yes, Pradeep. When do we calculate median, Nivedita? We calculate median when the data spread is not equal. Or where? Okay, It is- fair point. हाँ. Fair point.
एंड हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि इस डेटा में आउटलायर होंगे, नॉट मैथमेटिकली बट विजुअली, मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट सम पॉइंट्स, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि इस डेटा के अंदर आउटलायर होंगे? So if it is small data, if it is visual, then you get to know either it can be 0 or it can be 100. बट इस वाले And डेटा में जैसे मेरा मीडियन मुझे $29 दिख रहा है और मीन $486 दिख रहा है, स्टिल आई कैन आइडेंटिफाई कि इस डेटा के अंदर आउटलायर हैं, yes, we will have though there are to, 60,000 row items. yeah. What is the So key? so in the bigger data, you calculate both average and median. So when there is like a very small difference, then it is fine. If it is a huge difference, then definitely there is outliers in that. Like in this example, it is 400 and around 20. Then definitely Yeah. there is outliers in that. Perfect. Absolutely. Everybody agree with Nivedita, Yogesh, Achal, Varun, Anjali? Yes, yes, Pradeep. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So guys, next lecture में we are going to cover how do we, देखो visually तो हमें समझ में आ गया है कि outlier हम ढूंढते कैसे हैं, right? Outlier हमने बोला कि अगर there is a gap between mean and median, तो we can assume कि there are outliers in the data set. So this is one way, but sometime this may be confusing. हो सकता है कि let's say my mean is 50 and my median is coming around, let's say 56 for an example. Okay, so shall I consider this कि यार अब मैं क्या करूं यहाँ पे, यार मीन लूं, मीडियन लूं, क्या करूं? There can be various possibilities, right? यार आउटलायर होंगे कि नहीं होंगे? So in that scenario we go for the outliers. मैथमेटिकली हम आउटलायर्स कैसे निकालते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड, बट उसी से एक थोड़ा सा मैं तुम्हें जैसे आगे चलता ना, क्या बोलते हैं उसको, अपकमिंग एपिसोड में क्या आने वाला है वो आता ना खत्म होने से पहले. सो जब हम आउटलायर कैलकुलेट करेंगे तो हम एक मैथमेटिकल मैथमेटिकल में बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट यू कैन इजीली डू. बट जब हम बात कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, राइट, अगर मैंने बोला एवरेज इज 42, मीन इज अराउंड लेट्स से 26, मेरा आउटलायर है, आउटलायर नहीं है, लोअर एंड में आउटलायर है, अपर एंड में आउटलायर नहीं है, एंड दैट वे. सो अगेन लुकिंग एट द नंबर्स इट मेक्स थिंग्स कंफ्यूजिंग. सो we will draw some graphs and that graph will tell you how do we identify outliers, mean, median, just by looking at one simple graph. That graph will tell you whether we have outliers in this data, where we are standing on the average point of view, और median के हिसाब से हम कहाँ पे stand कर रहे हैं, कितना gap है, क्या है. Just one graph and that will conclude everything for you people. So that we will cover up on Wednesday because tomorrow I have a very urgent meeting. आप 5 मिनट लेट आए हो इसलिए, नहीं तो हमारा आउटलायर भी कवर हो जाता.